Destination, but a formula built on hard work. Being a student, everyone aspires to succeed, but to become a successful person, it is not an easy task. During the curriculum, throughout the motivational lectures, we came to know about many successful personalities. But when I used to, that at that time, I used to think to have an interaction with such kind of personalities. So luckily, I got an opportunity to have an interaction, to have a conversation to whom we really believe the master of educational field. So, in this podcast, I have the privilege of speaking with Mr. Mohammad Mahmood Ali Sohail sir, who is not only the president of All India Idol Teachers Association but also managed several schools. Despite of his busy schedule, he is always just one call away whenever we need him. He is none other than the chairman of EduPark International School. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sir. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. I am Sumaya Mehreen of EduPark International School, class 10. So, I warmly welcome you, sir, to this podcast. Thank you. Shall I begin the podcast? Please. Yes. I'm very much excited and a little bit nervous as you're sitting in front of me. So, my first question to you would be, what does success mean to you? See, the success is a very big definition, and whenever people achieve something, they feel that they are a success in the life. अगर मेरी जानिब से देखें तो मैं ये कहूँगा कि रोज़ाना जो इंसान नई नई चीज़ें सीखता है और हासिल करता है और फिर वो चीज़ें बाकी रखकर दुनिया से चले जाता है और जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है, हकीकत में वही उसकी कामयाबी और वही सही मायने में सक्सेस है. Same. So, my next question would be, how do you stay motivated during your challenging times? Many times I face many challenges, and see, when we face a difficult time in our life, we should not be worried, and everything is from Almighty Allah. जब आपके पास कुछ चीज़ें नुकसान हो जाती है, लॉस हो जाता है, तो पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपके पास था क्या. जब आपके पास कुछ था ही नहीं और सब कुछ दिया हुआ अल्लाह की जानिब से है, फिर नुकसान होने के लिए या फिर जो तकालीफ आपको मिल रही है या जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं उसके ऊपर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यकीनन जो चैलेंजेस अल्लाह की तरफ से आए हैं तो वो चैलेंजेस का सोल्यूशंस और मसाइल का हल भी अल्लाह की जानिब से ही है. सो वी शुड नॉट वरी इन द चैलेंजेस टाइम, एंड आई डू सेम. सो आई नेवर बी वरी व्हेन आई फेस सम challenges, and I will feel relaxed when I feel like getting the challenges, and I try to solve it in a very a good manner with my experience, and alhamdulillah I'm doing the same, and always alhamdulillah I sleep क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल आराम के साथ मेरी नींद होती है. कभी भी लाइफ में कभी परेशानी वाला सब के लम्हा नहीं आया, ना कभी नींद में कभी खलल हुई अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह. इसी बात पे किसी ने खूब कहा है कि चल पड़े हो कामयाबी के सफ़र पे तो घबराओ मत, कहीं सहरा कहीं समंदर भी आएंगे. So, sir, my next question to you would be, I heard that you opted your career in a very young age. So, what made you do that? You mean my professional career? Yes. आप बहुत कम उम्र में शुरुआत करें तो ऐसा क्यों? Actually, when it comes to my profession, simply we can say our profession is a teaching profession, and mostly it is familiar to the teaching profession. Like some people are from by chance, and some people are from by choice. So I can say I came by chance, not by choice. By chance means when I was just in intermediate, I think I was in intermediate second year. I was going to the college. One of my childhood friend, he met me, and he asked me where you are going. I said I'm going to college. So that time he offered me, why can you why don't you want to teach somewhere? One of the school is in our locality. I said teaching and me, it is highly impossible. So he offered me and he requested me a lot. So I said I will just try once. So alhamdulillah स्कूल को गया मैं, और फर्स्ट डे था, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गया, माशाल्लाह पढ़ाना शुरू किया. तो प्रिंसिपल की तरफ से अच्छा फीडबैक मिला. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता होते होते जब अपने टीचिंग प्रोफेशन का आगाज़ हुआ, और कभी सोचे भी नहीं थे कि टीचिंग प्रोफेशन आएंगे. फिर वो वक्त था, और फिर जैसे आपके आहिस्ता आहिस्ता जब टीचिंग में परफॉर्मेंस अच्छा होने लगा तो वहाँ पर इंचार्ज बना दिए गए. एंड सेम टाइम आई वॉज कंटिन्यूड माई स्टडीज़, माई एजुकेशन, and alhamdulillah getting a lot of experience in that profession. So I become a headmaster, like principal, in the year 2004, and later on I started my own schools. So सोचे नहीं थे
ये सब चीज़ इत्तेफाकी तौर पर होती रही और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम तक यहाँ पर पहुँचे हैं। तो बहरहाल जो बगैर सोचे समझे और बाई चीज़ आपके चांस ये प्रोफेशन में हमारी एंट्री हुई है। So as you're very successful, sir. So my only thought would be that back to your school days, were you a topper or a part of backbenchers? It's a very good question for me. See, I will say one thing. We have like three kind of students, like three categories in the students we can just categorize. One is backbenchers and other people like Middle 50-50 middle benchers and toppers first bench students. So we were the middle benchers actually. Okay. एंड जब कभी मौका मिल जाता है तो पीछे के बेंचेस पे हो जाते थे और जब चैलेंज आते थे जब ऐसा लगता था कि कुछ करके दिखाना है तो अपने आप को फर्स्ट पोजीशन में भी पाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरे ख्याल में मेरा अपना सोचना ये है अल्लाह ताला जिनको सही समझ देता है और जिनका थोड़ा सा भी आईक्यू लेवल अगर स्ट्रांग होता है सो इट इज़ इन देयर हैंड्स कि वो लोग कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। इट इज़ अप टू देम। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमको आगे बढ़ना है, पीछे रहना है या बहुत पीछे रहना है। सो मेरा शुरू से ये रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो ठान लिया वो करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई कैन से माई सेल्फ लाइक एवरेज स्टूडेंट्स बट ऊंचे ख्यालों के साथ मैं रहा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा। तो आज शायद ये पोजीशन पे पहुंचा हूँ मैं। Okay. Next question would be, what is the best piece of advice you have ever heard? You mean advice for others? No, someone gave it to you or you have read somewhere. One of my uncle, he's not like we इंतकाल हुआ हाल ही में उनका। He lives in Karimnagar, running a very big like hotels and good business. Once I met him, I asked him like चाचा लाइफ में हमें किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एक बहुत ही जैसा आपका अहम सवाल था मेरा उनसे और उसका जवाब माशाल्लाह बहुत अच्छा मिला। उसके बाद फिर जब आपकी लाइफ में चेंजेस आए वो बता रहे थे कि जिन लोगों के पास अल्लाह ताला सलाहियत दिया है उनको चाहिए कि कुछ ऊंचा करें, बड़ा काम करें। क्योंकि काबिल लोग अगर छोटा काम करते हैं समझो तो उनकी पूरी सलाहियत छोटे कामों में ख़त्म हो जाती है हमेशा हमेशा। अगर कोई बिजनेस करना है, आप कोई शॉप चलाना है, होटल चलाना है, स्कूल जो भी आप करना हो ज़िंदगी में बड़े लेवल पे करो ताकि आपकी लाइफ जो बिल्कुल कम है, लाइफ के अंदर टाइम कम है आपके पास, अगर वही चीज़ आप बड़ी जगह पे एनर्जी आपकी सर्व करते हैं, खर्च करते हैं समझो तो लाइफ में अचीवमेंट आपका ज़्यादा हो जाता है। छोटी चीज़ के पीछे बड़े हो समझो तो आपकी ज़िंदगी निकल जाती है लेकिन डेवलपमेंट आपके पास कुछ भी नहीं होता है। सो वो फार्मूला मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे सीखा हूँ और अभी जैसे आपके दिस इज़ नॉट एंड so we are planning to go more like good thing in the future to do much more better than our life inshallah. Sir, one question I would like to ask you. If you could go back in time and meet the person whom you like or someone, so who would it be and why? My father, क्योंकि like बहुत ही कम जैसे आपकी यादें उनके साथ मेरी जुड़ी हुई है और when I was in 5th standard I said that कि बाबा का जब इंतकाल हुआ माई फर्स्ट स्पीच रिटन बाई हिम। उससे मैंने कभी स्टेज पे आना या ठहरना या कभी स्पीच देना इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट पेपर नहीं था और उस वक्त लिखना पढ़ना भी मैं ठीक से जानता नहीं था। स्पीच जब लिख के दिए थे तो उसको रीडिंग बड़ी मुश्किल से कर करके मैं उसको याद किया था। रीडिंग राइटिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग लेकिन स्टेज जो फियर होता है वो कभी भी नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जैसा आपके उस वक्त जब हम सीखना शुरू करें तो ही एडवाइज अस कि आईने के मिरर के सामने ठहरो, बार बार रिपीट करो और इस तरह से पब्लिक के सामने आपको फेस करने में आसानी होगी। तो सच ए मोटिवेशनल पर्सनैलिटी शायद लाइफ में फिर में कभी कोई मिले नहीं। तो ही वॉज लाइक ए ग्रेट पर्सनैलिटी फॉर मी, मोटिवेशन पर्सनैलिटी फॉर मी और शायद ही बिल्कुल कम चीज़ें सीखे बुनियादी चीज़ें लेकिन वो अभी तक हमारी लाइफ में आपके चलते आ रहा है। बहुत कुछ उससे हमको इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिला है हमने। So, if you could go back in time and tell a piece of advice to your younger self, what would it be? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट कि अक्सर लोग जो है आपके अपने कमतरी, एहसास कमतरी, पैसों का नहीं होने का एहसास, रिसोर्सेज के नहीं होने का जो एहसास होता है इसके ताल्लुक से लोग रोते अक्सर। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि
क्या आपसे मिस हो रहा है उसकी चर्चा करने के बजाय अल्लाह ताला जो आपको दिया है, जैसा कि बेहतरीन, जैसा आपके दो आँख, दो कान और जैसा आपके एक बेहतरीन दिमाग, एक अच्छा दिल दिया है, उसका अगर सही इस्तेमाल कर लेते हैं अगर आप समझो, तो फिर आपको अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने का भी एहसास होगा, और जो चीज़ें मिस हुई आपसे उसका अफसोस जो आपके ख़त्म हो जाएगा। और यकीनन इतना भी आपके लिए काफ़ी है कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद बनाया और दोनों हाथ पैर आपके सलामत रखे हैं। सो दैट इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। हमारी जो यंग जनरेशन, यानी कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, उनके लिए ये अशार कहना चाहूँगा मैं कि बुलंद अज़ाइम हवाओं का रुख बदलते हैं, बुलंद अज़ाइम हवाओं का रुख बदलते हैं, रोने से तकदीरें नहीं बदलती। सहरा में अपने अज़्म का दामन न छोड़िए, सहरा में अपने अज़्म का दामन न छोड़िए, पानी की हो तलाश तो पत्थर नहीं छोड़िए। Dear viewers, as I hope that you learned a lot from this podcast, and I wish you all a very successful journey for your step towards success. So I advise you all that you should put your foot on the right place, and inshallah, in the future, you will also be counted in such personalities. So we will be back with another episode with another topic and person. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.